I, Ashwin Bawala, welcome you all in today's webinar on topic diversification and specialization growth mantra by very eminent speakers CA Gauravji Singhvi, CA Chayanji Agarwal, and CA Pratikji Bajaj. Today's topic, let me give a brief introduction, brief on today's topic. जैसे आप सब जानते हैं कि भाई अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रेडिशनल वे से या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से ऊपर उठ के कुछ डाइवर्सिफिकेशन करें, या जो अपने कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन गैदर करें, तो वो अभी के कट थ्रोट कंपटीशन में बहुत जरूरी है। और जैसे अपने स्पीकर्स है आज, तीनों स्पीकर्स ऐसे हैं, वो या तो स्पेशलाइजेशन करके बैठे अपने अपने फील्ड में, या कुछ उन्होंने अदर प्रैक्टिस डेवलप की है, कुछ खुद को डाइवर्सिफाई किया है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गौतम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का चार्ज ले और अपने अगले स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें। ओवर टू यू गौतम। Thank you, Ashwin. Thank you very much. You very well said कि over and above the CA practice और जो एक ट्रेडिशनल फॉर्म चल रहा है, जो आज के स्पीकर है उन्होंने एक नए एवेन्यूज ओपन किए हैं और नया ब्रेनस्टॉर्मिंग एक पार्ट अलाउ किया है सीएस को कि अपने अलग भी कुछ कर सकते हैं। एंड टू मैं बोलता हूँ कि अपने लिए तो टॉर्च बेरर होंगे जो इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ जिन स्पीकर को, सो दैट इज मिस्टर गौरव सिंघवी। So just I was being said कि अपने को गौरव सिंघवी सर को इंट्रोड्यूस करना है, so I said that गौरव सिंघवी itself is a मतलब he doesn't need any introduction, but I would just provide a brief on Mr. Gaurav Singhvi's profile. He is a chartered accountant and a professional investment banker, और उन्होंने सबसे बड़ा important यहाँ पे जो है कि he has introduced BNI, which is helping all the community or entrepreneur community to go through and develop their business. Other than that, he is associated with many things, which I would brief around. That he started his journey with the Financial Supermarket Group, which is serving many of the SMEs for their growth avenues. He is also a part of global networking organization and having franchisee itself in India, Sri Lanka, and Nepal. And one more thing that need to be highlighted, that he is being recognized as the investor of the year by South Gujarat Chamber of Institutions for startup ecosystem. So I would say that Gaurav Singhvi को कोई इंट्रोडक्शन की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन I would request Gaurav Singhvi कि आप please have a words of your experience and this on the topic which we are having about the diversifications and specializations. So over to Gaurav sir, please. Thank you, Gautam. And I'm so very pleased and happy today morning, to give the fellow colleagues, इतने सारे चार्ट अकाउंटेंट्स को देख के सुबह बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज हम लोग बहुत डायनामिक, बिकॉज मैं जब भी किसी एक नए चार्ट अकाउंटेंट से बात करता हूँ, मुझे एक नई डाइवर्सिटी, एक नए स्पेशलाइजेशन, मतलब दोनों चीजें साथ में, व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी एंड स्पेशलाइजेशन in this frame I can see some very dynamic people like Abhishek Mittal, Chayan Agarwal, and one very startup upcoming chartered accountant Pratik, and other people, all are, I'm not been able to take the names of that, but they are all here. फ्रेंड्स, जब हमने ये बात करी कि डाइवर्सिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन, तो मैं अपनी हर समय एक बात को बार बार लोगों को कहता हूँ और सब जनों को मैं ये एक लाइन से चालू करता हूँ जब भी अपना प्रेजेंटेशन ग्लोबली भी प्रेजेंट करता हूँ, फोकस विल मेक यू रिच एंड डाइवर्सिफिकेशन विल कीप यू रिच. So you'll have to decide that whatever you are doing, you will certainly have to be a specialized in that, because that will make you rich, because the focus will, or specialization will make you rich. Like whenever I have started my career, I was more focused to the project financing, and we have done a huge, for almost about 15 years, was very much focused on investment banking, project financing. And then eventually, because all of us has to understand that you have to diversify. When you wanted to grow to the next level, you have to diversify, and have diversified. So friends, if I wanted to tell you, and if I wanted to say you one very interesting thing for all of chartered accountant is, we are the only profession who get connected to so many businesses.
मतलब कोई भी दुनिया का प्रोफेशन ऐसा नहीं हो सकता जिसको कि इतनी लिबर्टी मिलती होगी कि इतने सारे बिजनेसमैन के साथ में, इतने डिफरेंट डाइवर्स बिजनेसमैन के साथ में काम करने का मौका मिले। वो केवल हमको मिलता है। वी गेट दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दैट we meet around a glass manufacturer also, a steel manufacturer also, a textile person also, a diamond person also. एंड जब हम ये कर रहे होते हैं तो हमारी बहुत सारे बिजनेसेस की स्किल सेट, बहुत सारे बिजनेसेस की इंपॉर्टेंस, बहुत सारे बिजनेसेस के मार्जिन, बहुत सारे बिजनेसेस की स्पेशलाइजेशन हमारे को सामने कम अक्रॉस होते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी और प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जिसके पास में इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आती होंगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस की, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग विद योर क्लाइंट्स, यू गेट टू नो देयर बैलेंस शीट, यू गेट टू नो देयर मार्जिन्स, यू गेट टू नो हाउ आर दे डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन दे आर ब्रिंगिंग। सो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रोफेशन हमको ये अवेलेबिलिटी कराता है, ये कंफर्ट देता है कि हम दूसरे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज मैं आप लोगों के साथ में रखना चाहता हूं कि जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर, पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है फ्रेंड्स। जस्ट टू सेलिब्रेट इट, आई थिंक 40, क्लोज टू 40, 36 टू बी प्रिसाइज, यूनिकॉर्न्स हैव टुक बर्थ इन दिस ईयर। अब तक 36 यूनिकॉर्न्स बर्थ हुए हैं, और क्लोज टू, ये नंबर जो है अलग अलग फोरम्स के ऊपर अलग अलग नंबर होता है, बट 100 के प्लस का इंडिया का यूनिकॉर्न नंबर है, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 7,500 करोड़ प्लस कंपनीज हैं। जब ये हो रहा है और आने वाले 1.5-2 साल के अंदर करीबन 100 कंपनियां और ऐड होंगी, और आने वाले 10 साल के अंदर ऐसा लगता है कि 500 कंपनियां हो जाएंगी टोटल इन दिस इकोसिस्टम, तो कौन लोग होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, या कौन लोग होंगे जो उस पूरी चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं? मुझे लगता है कोई और प्रोफेशन नहीं हो सकता जिस तरह से कि चार्ट अकाउंटेंट प्रोफेशन हो सकता है। एंड आई थिंक आई एम सीइंग सो ग्रेट चार्ट अकाउंटेंट्स एज अ स्टार्टअप फाउंडर्स ऑल्सो। हमारे साथ में प्रतीक बैठे हुए हैं। प्रतीक ने अभी भी रिसेंटली एक राउंड रेज किया है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू प्रतीक, बिकॉज आई नो what it takes to raise the money from the investor doesn't give a money without you do something great। वो भी एग्जांपल है हमारे पास में। और दूसरे एग्जांपल है कि जो कि ऐसे लोग हैं, चाहे अभिषेक जी हैं या चयन है, जो कि स्टार्टअप में मेंटर की तरह काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से उनको मेंटोर कर रहे हैं, या उनके साथ में बहुत डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज में एसोसिएटेड है। बिकॉज एक चार्ट अकाउंटेंट को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के अलावा बहुत सारी और चीजों की जरूरत होती है, बिजनेस मॉडलिंग की जरूरत होती है, उनको जो फाइनेंस रेज करने जा रहे होते हैं तब उनको कंसल्टेशन की जरूरत होती है, और उनकी पूरी जर्नी में, बिकॉज ये जो स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है वो कंप्लायंस इकोसिस्टम है। मतलब वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये होगा तो चलेगा, ये होगा नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर के पास में जा रहे हैं तो यू हैव टू बी अ कंप्लायंट एंटिटी, यू हैव टू बी एन एंटिटी जिसने सारे के सारे लॉ को पूरी तरह से फॉलो किया है, हर चीज करी है। चाहे कंपनी लॉ की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल कंपनी में, चाहे वो 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी होगी, उसमें इतने फॉर्म फाइल होते हैं जितने की 1 करोड़ रुपए रेज करी हुई स्टार्टअप के अंदर जितने उसके 10 गुने ज्यादा फॉर्म फाइल होते हैं। सो वहां पे हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास में जब उनकी हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि बिजनेस का जो ब्लड होता है, और उसको मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में चार्ट अकाउंटेंट से ज्यादा बेहतर कोई समझता है। यदि मैं आज वी फाउंडर सर्कल वी आर रनिंग, एंड वहां पे भी हमने ये कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ट अकाउंटेंट सिस्टम में लेके आए। व्हाई? बिकॉज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव टुवर्ड्स फाइनेंस, टुवर्ड्स बिजनेस प्लान्स, नो अदर पीपल स्पेशली इन इंडिया आई एम टॉकिंग ऑफ, उनके पास में। तो वो एक आप लोगों को सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बी स्पेशलाइज्ड इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट सर्टेनली यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई इवेंचुअली। सो कभी कभी ये लगता है कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। मैं बिल्कुल कहता हूं ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड नहीं है। हमने अपनी स्पेशलाइजेशन बिल्ड की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे। यदि कोई भी शहर में मेरे को आज से 15 साल में जानता होगा तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे जानता होगा, जबकि हमारी फर्म सब कुछ काम कर रही है। और उसके बाद में क्या किया, डाइवर्सिफाई करके, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप हो, या दूसरी और चीजें हो, मल्टीपल अदर बिजनेसेस हो उनके अंदर। तो और ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको हमने कहीं पे भी डिस्टर्ब किया है। सो दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इज सर्टेनली अवेलेबल फॉर ऑल द चार्ट अकाउंटेंट्स। सो फ्रेंड्स, बिल्ड योर कैरियर, जैसा कि मैंने अपनी शुरुआत में ही बात में कहा कि फोकस विल मेक यू रिच, बट डाइवर्सिफिकेशन विल कीप यू रिच, एंड दैट विच you have to always keep in mind। And again, the kind of so यदि हिंदुस्तान में बात करें, राकेश झुनझुनवाला, the biggest investor of India is a chartered accountant। the kind of आज की तारीख में जिस तरह का लेवल का recognition चार्ट अकाउंटेंट्स को मिल रहा है,
चाहे अभी हिंदुस्तान के टेक्सटाइल मिनिस्टर हो या और भी कोई, या पीयूष गोयल जी खुद हो, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर। सो आप लोग सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि स्टार्टअप के अंदर या स्टार्टअप रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व, ज्यादा से ज्यादा उसको समझें। प्रोफेशन के लेवल पे भी आपको बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू कैन डू लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन एट द प्रोफेशनल लेवल आल्सो। एंड इफ यू वांटेड टू ब्रिंग एनी स्टार्टअप, बिकॉज फिनटेक स्टार्टअप जो हैं जिनमें की फिनटेक का काम है, वहां पे सर्टेनली चार्ट अकाउंटेंट स्टैंड आउट करता है बिकॉज ही हैज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम, फाइनेंस और रेगुलेटरी बॉडीज कैसे काम करती है। क्योंकि बहुत सारे फिनटेक स्टार्टअप में आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है, या और कई सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे यदि आप इंश्योरटेक में है तो आपको आईआरडीए की परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो उन सब चीजों में भी हम लोग एज अ चार्ट अकाउंटेंट वी कैन कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे, एंड यू कैन ऑलवेज डिसाइड। और फ्रेंड्स, एक चीज को जरूर बोलता हूँ, फॉलो योर पैशन। कई लोग ये बात करते हैं कि पैशन कैसे आता है, तो मुझे लगता है कि वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है, लेकिन जब हम काम करते जाते हैं तो वो और भी ज्यादा एनलार्ज होता जाता है और एनलार्ज हो जाता है, और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। यदि मेरे से कोई पूछे तो व्हाट वो यू वर, आई वाज अ बॉर्न इन्वेस्टर, though I did not had a money when I started my career, but I was a born investor because I was always looking around those opportunity which can make my money multiplier or which can generate more and more wealth. So लेकिन वो पैशन को फॉलो करते गए। ऐसा भी समय होगा कि जब 1 रुपया भी जेब में नहीं होगा, लेकिन वो पैशन को फॉलो करते गए तो एक समय आया जब सिटी आपको रिकॉग्नाइज करता है एज एन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर, या ऐसा भी समय आया जबकि बिजनेस टुडे या बिजनेस लाइंस या जितने भी बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वो आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं इस बात के लिए कि आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं या कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वेल्थ क्रिएट करने में। तो यही मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और सूरत अपने एक बहुत ही, सूरत और खासकर गुजरात, या आई थिंक पीपल आर फ्रॉम ऑल अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र, तो सर्टेनली ये जो दोनों स्टेट है तो बहुत ही पावरफुल स्टेट है, और इसके अंदर जो इकोसिस्टम जिस तरह से डेवलप हो रहा है, जिस तरह से पूरा का पूरा स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, मैं एक चीज बाद में वापस कहना चाहूंगा कि एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्ट अकाउंटेंट, वी कैन कंट्रीब्यूट hugely in this space. Number one, number two, wealth is going to be creating here. Friends, please keep yourself aligned to that. मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि जमीन में खूब पैसा कमाया लोगों ने, लेकिन होनी चाहिए ना, गोल्ड में बहुत पैसा कमाया लोगों ने, होना चाहिए ना, यदि शेयर में बहुत पैसा कमाया लोगों ने, आपके पास होना चाहिए ना, यदि स्टार्टअप में लोग बहुत पैसा कमाएंगे या बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, आपके पास होना चाहिए। So that's very important. Whatever word will do, you will never make difference. If you will do, you will be able to make difference. So that's what I want to request. And friends, you're so eminent people here, जो कि इस इकोसिस्टम में बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा अभिषेक से तो कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट हर वीक या 15 दिन में मिलना होता है, एंड वी आल्सो डिस्कस अ लॉट अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम की, किस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, क्या तरह की मेंटरिंग आ रही है, क्या तरह की चीजों में बदलाव आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, प्लीज लुक अराउंड। यदि आपको कहीं पे भी कोई भी मदद की जरूरत है, कोई भी आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आपके पास में बहुत अमेजिंग मेंटोर्स हैं। आज के जो चारों स्पीकर हैं इंक्लूडिंग मी, यदि आप चाहें उनसे बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं, उनके पास में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको बहुत कुछ चीजें मालूम होती है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जिसका हम डायरेक्शन चाहते हैं। आज मतलब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रखूंगा। अभिषेक आते हैं मेंटोर साइड से, मैं आता हूं इन्वेस्टमेंट साइड से, प्रतीक आते हैं फाउंडर साइड से, और चैन आते हैं इंटीग्रेटर, जो कि फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस का बहुत जबरदस्त उनके पास में समझ है। तो 4 पैनल में 4 लोग, और चारों एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एंगल से सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, एंड थैंक यू फॉर द पीपल दोज हु हैव ऑर्गेनाइज्ड, जिसने इस पर्टिकुलर चीज को क्यूरेट किया कि चारों तरह के सेक्टर से लोगों को ला और यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर किया है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। एंड आप लोगों में से किसी को भी यदि स्टार्टअप में कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कहीं पे भी आप ऐसा सोचते हो कि स्टार्टअप में कैसे हम अपनी जर्नी को चालू कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, प्लीज फ्रेंड्स रीच आउट। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी टू assist you in any way, whatever in my capacity. Sir, I had some questions for you, Gaurav sir, before you leave. हर प्रैक्टिसिंग मेंबर को, हर सीए मेंबर को ये डायलेमा होता है कि मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं अपना 3 साल सरवाइव कैसे करूंगा। और हमने तो शहर में, सूरत शहर में यही सुन रखा है कि अगर आपको ये जानना है कि नेक्स्ट 5 साल में क्या होने वाला है तो गौरव सर को फॉलो करो, गौरव सर बताएंगे कि नेक्स्ट 5 साल में क्या होने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव सर्टेन एग्जांपल, क्योंकि आपने भी अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट की थी, where you had no interaction, no connections in Surat, you came from a different city, that
आपने डिफरेंट एरिया में, जब प्रोजेक्ट फाइनेंस था भी नहीं, एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन दीजिए कि सबको डायलेमा रहता है कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी में तो जाना है बट क्लाइंट ही नहीं है, मेरे को फॉरेंसिक करना है बट क्लाइंट नहीं है, तो हम डाइवर्सिफाई तो कर रहे हैं बट उसकी अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करें, एंड सम प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर दैट। सो अभिषेक, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, उसने बहुत इंटरेस्टिंग इस तरह इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि आदमी के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एज एन इंडिविजुअल यू ट्रैवल इन अ 4 क्वाड्रेंट्स। पहला क्वाड्रेंट होता है एम्प्लॉयड। आई वाज एन एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस, वर्क फॉर 4 इयर्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट वाज द रीजन शिफ्टिंग टू सूरत, और कोई कारण नहीं था सूरत आने का। और उसके बाद में 2002 में पिवट होके उसने रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सेकंड स्टेज इज सेल्फ, प्रैक्टिस करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो या सेल्फ प्रैक्टिशनर होते हो, और उसके बाद थर्ड स्टेज होती है बिजनेस की, और फोर्थ स्टेज होती है इन्वेस्टर की। सबको इससे ट्रेवल करना पड़ता है फ्रेंड्स, एवरीवन हैज टू ट्रेवल। आप फॉर्चुनेट यदि आप पहले दिन से ही सेल्फ एम्प्लॉयड है तो रवि मेरे सामने है, मुझे तो लगता है कि रवि छावछरिया बिजनेसमैन भी हैं, सो आई एम सीइंग, सो मैं आई एम हैप्पी। रवि, हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी टू सी यू। Good morning, sir. Glad to hear and listen you. Like great. तो वो सो मैं जब कह रहा था अपनी बात को कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं, उसके बाद में आप इन्वेस्टर होते हैं, सो ये चारों पोजीशंस को आपको अटेंड करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी चार्ट अकाउंटेंट्स आए वो शायद सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर बिजनेसमैन भी, अपने किसी तरह से उनके पास में अपने छोटे छोटे बड़े बिजनेसेस हैं, सब लोगों के पास अपने अपने। एंड देन देयर इज अ स्टेज व्हिच विल कम एज एन इन्वेस्टर, व्हिच यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इन्वेस्टर। सो प्लीज इसको फॉलो करें। और रिसोर्सेज, मैं आपको फिर बात बताऊं, रिसोर्सेज कभी भी हिंड्रेंस नहीं होती है ग्रोथ के अंदर, कभी भी हिंड्रेंस नहीं होती है। आज सूरत कभी भी सीए एजुकेशन के लिए नहीं जाना जाता था। हम जब भी बचपन में पढ़े तो जयपुर और जोधपुर, ये 2 शहरों का नाम आता था कि यदि आपको सीए करना है तो या तो जोधपुर चले जाइए या जयपुर चले जाइए, आप वहीं पे आप सीए करेंगे तो इन 2 शहरों में से ही कर सकते हैं। और लोग बाग बहुत बड़े बड़े शहरों से, मतलब बॉम्बे से कई बार लोग बाग, मैं आज के 20 साल 25 साल की बात कर रहा हूँ, कि जयपुर आके रहते थे, अपनी आर्टिकलशिप करते थे, और या जोधपुर में जाके कि भाई यार यहाँ पे सी होता है। अब आप सोचो कि कैसे शहर का नक्शा चेंज होता है, कैसे आज की तारीख में रवि जैसे लोग हैं कि दूसरे शहरों से लोग बाग आके सूरत में काम कर रहे थे। ये जब अभिषेक ने ये सवाल किया ना कि क्या आपको कोई लिमिटेशन होती है क्या, मुझे लगता है कि रिसोर्स को, स्पेशलाइजेशन को खोजते हुए दुनिया से लोग आ जाते हैं। यदि आपने अपनी स्पेशलाइजेशन डेवलप कर ली है ना, तो बॉम्बे भी छोटा है, बेंगलोर भी छोटा है, गुड़गांव भी छोटा है, और दूसरा पिछला जो 1.5 साल हुआ है ना, उसने तो पूरी दुनिया को वर्चुअल कर दिया है। यदि आपने अपनी स्किल सेट डेवलप कर ली साइबर सिक्योरिटी में, आपने अपनी स्किल सेट डेवलप कर ली स्टार्टअप को कंसल्टिंग करने में, आपने अपनी स्किल सेट डेवलप कर ली फॉरेन की अकाउंटिंग करने में, या किसी भी और चीज में, दुनिया आपको खोजती हुई आ जाएगी, बिकॉज अब पूरी दुनिया वर्चुअल हो गई है। देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग एन ऑफिस इन एनी सिटी नाउ, इट इज वेस्टफुल, रादर इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। आई ऑलवेज सी पीपल, कई चार्ट अकाउंटेंट बोलते हैं साहब हम यहाँ ऑफिस खोलेंगे, कोई जरूरत नहीं है। वेयर एवर यू आर, प्लीज बी देयर, collaborate with right people in the different cities, and you can do sitting in Surat work of entire India. There is absolutely no need of going anywhere. तो वो चीज को मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक चीज के ऊपर स्पेशलाइज करें, कुछ भी चीज जो आपका, फिर वही बात आती है, फॉलो योर पैशन। आपको एक चीज, क्या चीज, मेरे को हर समय फाइनेंसिंग समझ आती थी। जब से मैंने काम चालू किया मेरे को ऐसा लगता था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर होना, फंड में, अभी हम फंड लेके आ रहे हैं, सेबी रिकॉग्नाइज्ड फंड लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुझे वही चीज समझ पड़ती थी, तो मैंने उसी के ऊपर काम किया। आपको यदि साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो ऐसा आप हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, बट यू विल हैव टू फॉलो दैट पैशन। एंटायर वर्ल्ड विल कम टू यू, पीपल फ्रॉम बैंगलोर विल कम एंड टेक योर कंसल्टिंग, but you will have to be little more focused, little more specialized in that. That is what is required. Yeah, Abhishek. I think आप mute हैं Abhishek. I would request Gautam, you take the session ahead. Okay. Introduce our. Yes. Thank you, Gaurav Singh sir, for spending time from your busy schedule. Thank you. Let's move to the another speaker, that is CA Chayan Agarwal. So he is a chartered accountant, a lawyer, or he is a rank holder in CA examination also. And earlier he was started with his career with the SR Steel in a special management program, which is directly reporting to the promoters. And after that, he also had a interest in academician part. So he started with the tuition part also of CA and CA students, and made more than 100+ CAs under his guidance with the rank holders.
So other than that, he is that spark to have that financial market exploration, and so he specifically working currently with the stock market and has started with the Javik Wealth investment advisory company, which is helping many investors to grow their wealth. And also one of the known thing that is being associated with Chayan Agarwal is Pakistan, where he educates many people through simple language about the stock markets and other financial instruments. So over to you, Chayan. Please throw some light on today's topic, that is diversification and specialization. Thank you, Gautam. Thank you for such a nice introduction. Good morning, everyone. Good morning, all my fellow members, and special greetings to Gaurav भैया, जिनको मैं कुछ जो ऐसे seniors है, जिनको मैं as a mentor भी देखता हूँ. Gaurav भैया है, Ravi sir, it is very nice to see you, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका मिल रहा होगा कि जिन सर से आप पढ़े हो उनके सामने आज आप बोल रहे होंगे. Ravi sir, my friend Abhishek and अश्विन, बहुत सारे लोग हैं. मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ. माय को स्पीकर प्रतीक, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट वुड बी नाइस टू हियर यू एज वेल प्रतीक. एंड बहुत सभी लोग जितने लोग आए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन. This session which has been designed, which has been kept, जो टॉपिक रखा है अभी, आई थिंक I meet lot of youngsters these days and सभी का ये कॉमन प्रॉब्लम है ही, आई थिंक. एंड मैं ये बताऊंगा कि ये शायद सिर्फ यंगस्टर्स का नहीं है. सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब जिसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे जो दोस्त है जो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके भी कहीं ना कहीं अभी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं. एंड आई थिंक कि हम सभी लोग इस सेशन में इसी के लिए आए हैं. Session is about diversification and specialization. तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आ रही है diversification, जो मैं खुद actually अभी जिस फील्ड में हूँ, that is after being a full time teacher, I am shifting to something else, जहाँ पे मैं इक्विटी में हूँ अभी. तो वहाँ पे diversification की बात करते हैं कि भाई सभी इन्वेस्टमेंट्स को आप एक साथ एक ही जगह पे नहीं रखिए, बिकॉज अगर सब में रिस्क होता है. तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का भी मतलब, हम जो प्रोफेशन में बोल रहे हैं, तो यही हुआ कि हम सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे शायद डिपेंड नहीं हो सकते, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग सुपर फास्ट. 10:1 हो चुका है. हम पहले जिसको डिकेडल चेंज बोलते थे, वो 1 year चेंज है. वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट ईयर. सो मच फास्ट इट इज चेंजिंग इट. बिकॉज ऑफ कोविड भी इतनी सारी चीजें चेंज होती जा रही है. एंड स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब कि जहां पे हम किसी चीज पे एक्सपर्ट हो चुके हैं. जैसे यहाँ पे गौरव भैया थे, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से शुरू किया. वी कैन टेक अ लाइव एग्जांपल. देन ही हैज शिफ्टेड टू बीएनआई. बीएनआई को उन्होंने वापस 1500 एंटरप्रेन्योर्स को सुबह सुबह 7 बजे बुलाना. अगेन ही स्पेशलाइज्ड इनटू दैट. रवि सर ने स्पेशलाइजेशन अपने सब्जेक्ट्स में कर ली. तो कहीं ना कहीं हम किसी एक चीज में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और फिर वहां पे वो बात जरूर आती है पैशन की. यस. So I started in 2009 as मैंने प्रोफेशनली जब पढ़ाना शुरू किया था. So I faced many challenges when I started teaching, because 2009 में CA जाके पढ़ाए और 7 लाख की सैलरी. मेरी SR में मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था शशि रुइया, रवि रुइया की टीम में मेरी, एंड 7 लाख की पे थी मेरी 2009 में. उसको लीव करके अगर आप टीचिंग में जा रहे होते हो, तो घर पे समझाना या किसी को भी समझाना बहुत मुश्किल था. बट उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज थी, बिकॉज आई वॉज टीचिंग सिंस 2004. तो मेरा पैशन वहां पे था. सो दैट हेल्प्ड मी कि मैं उसको बहुत अच्छे से कर सकूं. रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है, we need to follow 2 P's in life to succeed. So this applies to everyone. हम सभी CS के लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि जब हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि क्या करना चाहिए. So I've written 2 P's हमें फॉलो करना होता है. One is passion and second is पैसा. Because if you are doing something जहाँ पे सिर्फ पैशन फॉलो हो रहा है, मैं सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी देता रहूं और कुछ अर्न नहीं करूं, so it is not going to satisfy me. And सिर्फ पैसा भी मिलता है, तो फिर एक पॉइंट के बाद जाके हमें लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा काम का. And then we think to shift. अब अगर हम कुछ चीजों की और बातें करें कि अभी सीए में यंगस्टर्स के लिए जो सबसे बड़ा एक होता है कि भाई हम सीए प्रैक्टिस के बारे में बात करें. हाउ सीए प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी. जीएसटी ऑडिट चली गई, आगे जाके सीए ऑडिट की लिमिट बढ़ जाएगी, किस तरह से क्या काम होने वाला है. सबसे बड़ा हमारा थ्रेट ही यही है कि फ्यूचर बहुत डायनामिक है. वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. सो वी हैव टू बी अवेयर कि आसपास क्या चल रहा है और कौन सी चीजों में हम कर सकते हो जिसका अवेयरनेस नहीं है. कल ही मेरे लिए ये मुझे कल ही इस चीज के बारे में पता चला. आई एम नॉट इनटू प्रैक्टिस, बट आई वुड लाइक टू शेयर कि जैसे हम लोग आप में से बहुत सारे शायद यंगस्टर्स, मुझे लगता है कि दे माइट बी इनटू प्रैक्टिस कर रहे होंगे. सो हम लोग जब एम्पैनलमेंट की बात आती है ना, तो एम्पैनलमेंट में बैंक ऑडिट के एम्पैनलमेंट में जरूर उसका फॉर्म भर देते हैं कि हमें बैंक ऑडिट चाहिए, बैंक ऑडिट चाहिए, और हम बैंक ऑडिट के पीछे भाग भी रहे होते हैं कहीं ना कहीं. बट मुझे कल ये फैक्ट पता चला कि देयर आर 42 टाइप्स ऑफ एम्पैनलमेंट इन इंडिया. 42, मोर देन 40. हम वहां पे भी अपने आप को, अगर हम प्रैक्टिस के अंदर है तो हम वहां पे एम्पैनल कर सकते हैं. फॉरेंसिक ऑडिट,
अभी जो ट्रेंडिंग में आ रहा है फॉरेंसिक ऑडिट के लिए बहुत ही कम लिमिटेड सीएज है जो उस पे एक्सपर्टीज कर रहे हैं, बिकॉज अगेन इट्स अबाउट स्पेशलाइजेशन। फॉरेंसिक ऑडिट पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहा है, उसकी फीस जो मिल रही है, अगेन आई केम टू नो इट इज नॉट इन लैक्स, इट इज मोर देन इन लैक्स, दैट इज इन क्रोर्स। फॉरेंसिक ऑडिट की अभी फीस जो मिल रही है, बहुत लिमिटेड सीए फर्म्स है जो इंडिया में भी उसको प्रैक्टिस करें। आई हैव माई फ्रेंड, ही इज फ्रॉम सीए, he is into something जो मैं और किसी भी सीए को नहीं जानता कि उस काम में वो होगा। He is into cyber security audit. If you know Binang Tijani, he was earlier teaching ITSM. He is a very close friend of mine. हम लोगों का 4 जनों का ग्रुप है, and he shares something जो न्यूज में 2 दिन के बाद आता है। जैसे वो हमें पहले से बता देता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सभी डेटा जो है वो हैक हो चुके हैं, पूरे डार्क वेब पे मिल रहे हैं। वो हमें उससे पहले से बता दिया, मुझे पहले से भेज दिया कि मनी कंट्रोल के ये ले, तुझे लिस्ट चाहिए 10 लाख लोगों के ले, आईडीज ले, फोन नंबर ले और सबके ये ले। सो क्या क्या हो रहा है, एंड ही इज इनटू सीए। अब वो सीए है और सोचो कितना इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं तो उसके साथ बैठ के डिस्कशन करता हूँ और मुझे बहुत इस चीज का मजा आता है। ही गोज टू स्पीक अबाउट सेशन। वो थोड़े टाइम पहले अमूल में सेशन के लिए गया था कि आप अपने कैसे साइबर सिक्योरिटी रखिए अपनी कंपनी के अंदर। अमूल ने उनसे हायर कर लिया। वो 25 डेज ऑफ मंथ ट्रैवल कर रहा होता है। अभी मैंने कुछ, हमारे ग्रुप में कुछ नया अभी शुरू हुआ है, वर्किंग मोर राइट नाउ टू अंडरस्टैंड क्रिप्टोज। अगेन क्रिप्टोज नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ पे नहीं यूज करना चाहूंगा, जस्ट फॉर लर्निंग थिंग, बिकॉज मुझे ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे ऐसा लगता है कि 2030 में सब ब्लॉकचेन हो चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना मैं पढ़ता हूँ मुझे उस पर उतना ट्रस्ट आता है। आई डोंट नो कि आप में से उस पर कितने लोग वर्क करें, बट मैं जैसे एक वर्ड पढ़ रहा हूँ तो मुझे शायद वो 10 दिन समझने में लग रहा होता है। दोज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, बट जब मैं उसमें जा रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि यस, दिस इज द फ्यूचर। There is a new word now which is, आप लोगों ने शायद सुना होगा, DeFi या DeFi बोलते हैं उसको हम लोग, decentralized financing. So what is decentralized financing? I'm into equity, I'm into investment. मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है यार यस, ये तो कितना बड़ा चैलेंज है जो होना ही चाहिए सॉल्यूशन में। आज जीरोधा जब मर्जी होता है बंद कर देता है कि आप स्टॉक को ट्रेड नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज उस पर किसी का कंट्रोल है। What blockchain talks about? Decentralized, किसी पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो मैं जब इसको पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि यस, बात तो एकदम बिल्कुल सही है। NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, मतलब मैं ये सब टेक्निकल चीजें है कि जिसपे हम मतलब अगेन अंडरस्टैंडिंग किसका सबसे स्ट्रांग होता है, सीए का। डेफिनेटली हमारे उस ग्रुप के अंदर एक नॉन सीए है और हम 3 सीए हैं। मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो दुबई में प्रैक्टिस कर रहा है, एक बिनांग तेजानी, और एक नॉन सीए जिसका क्रिप्टोज के अंदर crores of rupees का इन्वेस्टमेंट है। ही सजेस्टेड मी कि भैया आप सीए हो, आपको इस पे पढ़ना चाहिए और आपको इस पे एक्सपर्टाइज करना चाहिए, आपको स्पेशलाइज करना चाहिए। तो मैंने उस पे स्पेशली शुरू किया है ना, मैं डेली उसमें लिखता हूँ ग्रुप में कि मैंने आज 2 घंटे का यूट्यूब देखा, मैंने 2 घंटे की रीडिंग की। भिनांग ने पोस्ट किया कि यू आर लकी कि तुझे 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। सो ही इज इनटू दैट थिंग कि जहां पे उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। मैं दूसरी एक और चीज की बात करता हूँ। लास्ट वीक आई वाज हैविंग अ जूम इंटरेक्शन विद वन ऑफ माय स्टूडेंट हु इज राइट नाउ इन कनाडा, एंड आई वाज अगेन एक्सप्लोरिंग वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो सीए के लिए। व्हाट इज दैट अपॉर्चुनिटी? द अपॉर्चुनिटी इज बुक कीपिंग आउटसोर्सिंग। मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है कि उस जिस कंपनी में काम कर रहा है वहां पे बुक कीपिंग के क्या चार्जेस ले रहे हैं। अगर आप में से कोई बुक कीपिंग में और इफ यू वांट टू शेयर तो आप बताइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ फैक्ट। वहां पे कंपनीज कैसे करती है, ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन पे पैसे देती है। द स्लैब्स होते हैं, तो फर्स्ट स्लैब जो है दैट इज 0 to 49 ट्रांजेक्शंस अ मंथ। सिर्फ 49 ट्रांजेक्शन। कितना टाइम लगेगा हम लोगों को? अभी अगर बोला जाए कि 49 ट्रांजेक्शन करना, आप अपने ऑफिस में कितनी देर में करवा सकते हो? 2 घंटे 4 घंटे, मैक्सिमम 1 दिन ले लोगे, ज्यादा तो नहीं लोगे। द फीस इज $179 पर मंथ। पर ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करते तो हाउ मच दैट कम्स टू? $3 के ऊपर, मतलब ₹250 एक ट्रांजेक्शन पंच करने के लिए आपको कंपनीज दे रही है। Isn't that a good opportunity? Definitely a good opportunity, but we need to explore it, we need to work it, we need to specialize about it. मैंने तो उस पे फिर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट होता है, मैं हमेशा जो भी चीजें चल रही होती है मैं उस पे कूद जाता हूँ, थोड़ा सा उस पे समझने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट, मुझे मजा आता है। मैंने ये भी समझा कि कौन से सॉफ्टवेयर में वर्क हो रहा है, तो क्विक बुक करके एक सॉफ्टवेयर है जिसपे उसकी अकाउंटिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग ले लो तो उससे आप कर सकते हो। तो देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट हमें क्या करना होगा? सबसे बड़ा चैलेंज, यस, गौरव भैया ने भी उसमें वो शेयर किया था, या फिर हम सब लोगों के साथ रहता है, ये यंगस्टर जब ज्वाइन करते हैं तो सबको ऐसा ही होता है कि यार मुझे प्रैक्टिस से शुरू करना है, प्रैक्टिस सेट हो जाएगी फिर उसके बाद कुछ करूंगा। यहाँ पे मैं एक और चीज मेरे बारे में बताता हूँ। आप में से सभी लोग प्रैक्टिस में होंगे और प्रैक्टिस में आपको पता होगा कि टैक्स में सबसे ज्यादा स्कोर करना है। मेरे रिज्यूमे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से मुझे कोई भी कंपनी रिजेक्ट नहीं करती थी। आई हैव स्कोर्ड मोर देन 70 इन बोथ द लेवल ऑफ सी एग्जामिनेशन, व्हिच इज वेरी रेयर थिंग। 71 and 72 मेरे दोनों एग्जामिनेशन में, इंटर और सीए फाइनल में, आईपीसीसी फाइनल में टैक्स पे 70+ है। बट मैं फर्स्ट डे से क्लियर था, टैक्स नहीं करना मुझे टैक्स की प्रैक्टिस नहीं चाहिए। आई एम वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है।
सो इट इज अबाउट अगेन फॉलोइंग योर पैशन. आपको पता होना चाहिए क्या करना चाहते हो. आप दूसरे से बिल्कुल मोटिवेट होइए, इंस्पायर होइए, पर कॉपी नहीं कर सकते हम कि कोई ऐसा बोले कि यार आपके जैसा बन जाना है, तो वो आपके नहीं होनी चाहिए. उनकी हमें आदतें कहीं ना कहीं हमें लेनी होती है. हम कभी किसी से सीखते हैं तो हम बड़े सीए से हम उनसे कुछ क्वालिटीज उनसे ले सकते हैं, बट हमें क्या करना है वो तो हम लोगों को ही पता होना चाहिए मुझे किस में ज्यादा मजा आता है. जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ दैट इज, मैंने जब टीचिंग को कम किया तो मैं इक्विटी में शिफ्ट हो गया. व्हाई? बिकॉज मैं इक्विटी शायद 24 घंटे में से जितने सोने का टाइम है वो माइनस करो, उसके अलावा इक्विटी कर सकता हूँ, उसके अलावा फाइनेंस कर सकता हूँ. एंड स्पेशलाइजेशन अगेन, तो अभी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो आई स्टार्टेड अ न्यू ट्रेडिंग. आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, डेल्टा ट्रेडिंग इज ऑन अ वेरी हाइप दीस डेज. अभी डेल्टा ट्रेडिंग बहुत चल रहा है, बहुत सारे सीए ज्वाइन हो रहे हैं. एक सीए ज्वाइन हो रहा है अभी मेरे साथ, जो जिसकी पैकेज 50 लाख पर एनम है, वो वहां से छोड़ के आ रहा है और मेरे साथ डेल्टा ट्रेडिंग में ज्वाइन हो रहा है. 50 लाख का पैकेज छोड़ रहा है, ही इज ज्वाइनिंग फॉर डेल्टा ट्रेडिंग. सो डेल्टा ट्रेडिंग में क्या होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है. मैंने क्या किया, मैं ओवर द टाइम टाइम देता जा रहा हूँ, लर्निंग करता जा रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ मैं, डेल्टा ट्रेडिंग पे भी मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर ली, बैंक निफ्टी के बाद भी मैंने डेज सिलेक्ट कर लिया. फ्राइडे को बहुत बड़ा मार्केट फॉल था, फ्राइडे को मैं पीसी नहीं ऑन करता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता फ्राइडे को क्या होने वाला है. फ्राइडे को तो मैंने डेज भी सिलेक्ट कर लिए कि मुझे कब ट्रेड करना है, मैंने टाइम भी सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कब ट्रेड करना है. सो इट इज अबाउट स्पेशलाइजेशन, कि हमें कोई भी चीज में जब हम घुस रहे हैं ना, तो हमें वो पूरा अच्छे से खुद से ही करना पड़ेगा. और हमें एक चीज तो क्लियर होनी ही पड़ेगी कि हम क्या करना चाहते हैं. इट इज अबाउट अगेन, आई कीप ऑन सेइंग, आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू एवरीवन whom I meet, पैशन एंड पैसा दोनों ही चाहिए. पैशन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए. मेरा पैशन स्टॉकिस्तान है, जहाँ पे मैं कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं रखता हूँ, बट मुझे मजा आता है जब मैं 100 लोगों के साथ उनको इन्वेस्टमेंट की बातें बताता हूँ या कुछ ऐसे मिथ्स क्लियर करता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत मजा आता है. सो आई थिंक कि मुझे यहाँ पे मैं जो एक इम्पोर्टेंट चीजें रखना चाहता था वो मैंने रख दिया है. एनीथिंग अगर और कुछ होगी तो फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली. या गौतम, अश्विन आपकी आवाज नहीं आ रही है. थैंक यू चैन. आई थिंक अश्विन की शायद कनेक्टिविटी में कुछ इशू होगा. Anyways, and I would like to introduce next speaker, that is रवि छाउचायरा सर. So उनका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम सब ने उनके गाइडेंस में पढ़ाई की है, और वो तो अपने, मैं मानता हूँ कि सब सीए के कहीं ना कहीं मेंटर रह चुके हैं. So मैं इसको और ज्यादा सिंपल करता हूँ कि बस रवि सर सबके मेंटर हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू कम ऑन द फोरम एंड प्लीज brief us about the specialization and diversification. Sir, please, Ravi sir. Hello all, and thanks. सॉरी रवि सर एक सेकेंड. गौतम ने बहुत ही सिंपल कर दिया, बट हम सब जानते हैं कि सर ने कितने बच्चों को पढ़ाया है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. सर ने कितने रैंकर्स बनाए हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. सर का सीए स्टार्स का प्रोग्राम है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. आज सर से हम जैसे क्लास खत्म होने के बाद एज अ फ्रेंड बात करते हैं वैसे बात करेंगे. आई थिंक दैट इज व्हाट रवि सर्स चार्म इज. That is what Ravi sir gives on the table, that apart from being a faculty or a mentor or a teacher or a professional, he is a good friend. I think अब हमको रवि सर को ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमारे इनफॉर्मल डिस्कशंस में. थैंक यू. Correctly, very correct Abhishek. Thank you for adding the words. So thanks Abhishek, and thanks Gautam and the whole team. And it was wonderful to listen CA Gaurav Singh sir and CA Chain Agrawal. I am so glad, and it was really an enriching experience in the morning time. Now, from the very beginning, we understand that the chartered accountancy is a multi-specialist and a multi-dimensional profession. The name is accountancy, but it is not at all limited to accountancy. और कभी कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे का अकाउंट्स कच्चा है इसलिए मुझे इसको सीए नहीं कराना. मैं बोलता हूँ अकाउंट्स भूल जाओ सीए में. ओके, सीए फाइनल में तो अकाउंट्स है ही नहीं, राइट? द होल प्रोफेशन इज सो डाइवर्सिफाइड इन इटसेल्फ दैट इफ वी लुक इनटू इट प्रॉपर्ली, देन आवर बेस एजुकेशन, ओके, इज आल्सो सो डायनामिक, ओके, व्हिच इंक्लूड्स इन प्रेजेंट टाइम. अभी जो आप में से जो सीए 8-10 साल पहले कंप्लीट कर चुके, अगर आज वो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का भी जो बेस है, बिकॉज हमारे प्रोफेशन का बेस हमारे एजुकेशन से स्टार्ट होता है. व्हाट वी आर सपोज्ड टू लर्न, व्हाट वी आर लर्निंग एज ऑफ
टुडे। सो हमारे एक सब्जेक्ट, अगर सिर्फ हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के हमारे पेपर को देखें और इंस्टीट्यूट ने जैसे ओपन बुक एग्जाम्स चालू किए, आई मे साउंड समवॉट एकेडमिक्स बट आई एम रिफरिंग टू द प्रेजेंट बेस ऑफ आवर प्रोफेशन। तो वहां पर भी इतने ब्यूटीफुली एक सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पेपर को देखें तो उसमें इंस्टीट्यूट ने इतने मॉडर्न अप्रोचेस, टेक्निक्स, केस स्टडीज, इंडस्ट्रीज के एनालिसिस, मर्जर्स, टेकओवर्स या बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से लेकर यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी, यहाँ तक कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जैसे एक चीज ये भी हम देखें कि एज ऑफ नाउ after this COVID and also because of like increasing the concern about climate across the globe, अब हम सोचेंगे हम CLO का climate के related क्या कोई concern है, but even in our present CA final curriculum, okay, we have environmental management accounting, environmental concern कि कोई भी industry का environment पे कितना impact पड़ रहा है। Can't we think to act for the administration, for the government, where we can advise, we can investigate into the implications of any business। अब आपको ये सही तो engineers का पार्ट हो गया, okay, but that is not the case। The thing is that कि आप अगर ठीक से देखें तो हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ साथ बिजनेस एस्पेक्ट, प्रोसेसिंग जो है उनको भी काफी समझते हैं। हम उसके जो इम्पैक्ट केमिकल वाइज नहीं, ओके, फिजिकल या वो सब वाइज नहीं, बट फाइनेंशियल वाइज कि हाउ मच इट इज कॉस्टिंग। जैसे आज कोविड ने भी इकोनॉमी में फाइनेंशियली क्या बर्डन डाला, क्या कॉस्ट हुआ, तो उसका एनालिसिस को इंजीनियर से अच्छा एक सीए ही करेगा। एंड व्हाई नॉट टू थिंक, जैसे आज दिनांक की बात की है, एंड आई नो दिनांक फ्रॉम व्हेन ही वाज स्टडीइंग, ही वाज ऑलवेज अ पर्सन हु यूज्ड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, राइट, जिसके बारे में चैन ने कहा, इवन चैन इज अ पर्सन हु थिंक आउट ऑफ बॉक्स, अ वेरी डायनामिक पर्सन, और आज उनका पूरा ग्रुप ही वैसा है। सो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, वी हैव टू थिंक not just limited to startups or technology, but also to certain areas which are totally unexplored. See, कोई भी area, कोई भी activity बिना financial implications के होंगे ही। And when it comes to financial implications, we are the only one, or you can say we are the professionals who are at the forefront in analyzing and giving its impact. जस्ट इवन सम स्टार्टअप्स जो टेक्निकल पर्सन होते हैं वो भी हमेशा हम सीएस को अप्रोच करते हैं कि इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, हाउ टू डिजाइन दिस थिंग। सो आवर लर्निंग, आवर प्रोफेशन इटसेल्फ गिव्स अस सच अ ब्रॉड व्यू दैट just a moment, it gives us such a broad view that we can work very beautifully in all these areas। अगर हम जैसे भी मैंने एनवायरमेंटल की और बात की, अगर हम इसके अलावा जैसे साइबर सिक्योरिटी के बिना जाने की बात की, तो अब हम लोग के जो सब्जेक्ट होते हैं EIS के, इसका के, ओके, दिशा में भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम सिस्टम कंट्रोल्स, ऑडिट और मतलब सिस्टम से डिजाइन और उसमें ERP, SAP और सिक्योरिटी एंड फ्रॉड, बिकॉज हमारा ऑडिट का जो एक कोर एरिया है, ऑडिट का फंडामेंटली है इन्वेस्टिगेशन, ओके, और फॉरेंसिक। अब अगर हम ऑडिट को थोड़ा कोर कर दे तो फॉरेंसिक बन गया, राइट। तो हमारे सब्जेक्ट्स भले फाइनेंस हो, ऑडिट हो या लॉ हो, अब लीगल एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड इवन टुडे लीगल एस्पेक्ट्स में नॉट ओनली इन टैक्सेशन मैटर्स, but why not to think into labor laws, into industrial laws, okay, even and extending to civil laws। So diversification is so much there। गौरव सर ने बहुत सही कहा कि हम सब में कुछ ना कुछ पैशन तो होता है, एक इंक्लिनेशन होता है, और हमें उस चीज में अगर लग रहा है कि यस वी कैन कंट्रीब्यूट एंड इट विल हैव अ वैल्यू। जैसे चैन ने कहा पैशन और पैसा, तो पैसा हो सकता है आपको तुरंत ना दिखे। सी व्हेन आई स्टार्टेड सी एजुकेशन, मेनी पीपल सेड मी कि रवि तुमको जो पैकेज मिल रहा है उसके सामने सीए एजुकेशन में उस समय बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे, 2004-5, राइट, मच बिफोर, लाइक, तो उस समय आई वाज क्लियर कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं। सो यू सी दैट whether you are able to add a value, and when you are clear, yes, I can add value, then the second job is to make people, the enterprises, the organizations clear about how value you can add। हमें समझ में आता है कि वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बट हमें ये अज्यूम नहीं कर देना है कि सब लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ वैल्यू कैन बी एडेड, ओके, एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस। लाइक इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट आज से हम 10-15 साल पहले नहीं सुनते थे,
बट लास्ट 10 years में यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने और इवन कई सीनियर सीएस ने भी जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते थे, उन्होंने जिस तरह से कॉर्पोरेट्स को और बिग बिजनेस हाउसेस को इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट की इंपॉर्टेंस समझाई और उसमें उन लोग उनको कितना सेविंग करा कर दे सकते हैं, उसको उन्होंने एक्चुअल में करके दिखा के दिया कि अगर आप हमको मौका दो, आपको बताते हैं हम कितना सेविंग करा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, in terms of your tax payments, in terms of your compliance cost. Then today management audit, internal audit is becoming such a niche area of practice, consultancy. So similarly, we have to make people realize about the importance of value, what we can create. Sometimes we complain that this is really a very, very good area where we can contribute, but people don't understand. Okay, people don't pay for this. So for that, our primary job is to understand that people won't understand. We have to agree that people won't agree. And then we have to make them agree. We have to work on that, right? So that's how whenever we speak of diversification or specialization, the very first problem which everyone says is that how to get value out of it, how to get money out of it. Okay, we have the idea, we have the talent, we have the knowledge about it, right? So for that, you have to make people understand its importance, and even for some time you have to give them जैसे sample basis, trial basis पे आपको देना पड़ेगा, जैसे रिलायंस करता है. ओके, एक बार आपको उनको उसकी लत लगानी पड़ेगी, उसकी आदत लगानी पड़ेगी, उसको एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा. ओके, and then you will get the result out of it. So that was some input from my side. I think so. Without taking much more time of yours, I think so. The aspect which I have covered was basically on getting the value perceived from our clients, from our from the corporates, from the enterprises, of whatever new ideas and new avenues which we have. And I'm looking out that every day whenever I meet the youngsters, they all have some very, very beautiful, amazing breakthrough ideas. Okay, and even they have the energy to execute them. So thank you, everyone. Okay. Thanks, Abhishek. Thanks, Gauravji, Gautam, and the whole team. And at the same time, in these days, as chartered accountants are meeting regularly and they are going through some brainstorming discussions in the excuse of elections also, it may be so. Okay, but and really, I'm proud to have like wonderful people contesting the upcoming elections also. And I wish that our Surat people, okay, will do wonderful, okay, in the upcoming elections of ICR, and the new committee which will be formed will be thinking, okay, on this topic, which has been very aptly placed at this time about the diversification, new avenues, and expertise specialization of chartered accountants. Thank you. Thank you, Ravi sir. Thank you very much for having such a good words for all of us. And it's always been great to listen to you, sir. Now I would welcome Prateek Bajaj. So Prateek Bajaj is a co-founder and CEO of Value Nationary, and he to his profile, brief profile, that he is a CA, CFA. He's also worked with as a corporate banker in Bank of America and as an investment banker in Quest Capital, and he was also a portfolio consultant for Nivesh I. So doing his journey, he found that there is a big gap between the requirement for the employers, for the employees, and the skill set. So to meet up that gap, he came up with this Valuationary startup, and he's doing good. As we recently heard about that, Prateek has raised funding. So many congratulations, Prateek, for having this big thing on your startup. And we welcome you to this session of specialization and diversification. So you would also throw some light on this. Thanks. Over to you. Thanks, Gautam, for the lovely introduction. Hello, Ravi sir, Chayan Bhaiya, and everyone present here. Thanks for inviting me. It's a pleasure to be amongst you. I will keep it very brief. I will just get to the points that I wanted to discuss. I hope my screen is visible to all. So the topic is specialization, and I cannot be more confident to speak on those topics because I've been foraying into this space and talking about it openly, that specialization is the need of the hour. World is moving away from generalization towards specialization, and
now will be a good time to understand the need of it and get into that mode of specializing yourself. So right from, if I plot specialization with respect to time, it's a very cool chart to have. आप ये जरूर किसी और को भी दिखाइएगा. Just a chart that I wanted to, I was just thinking about कि मैं कैसे बताऊं कि specialization का need क्या है, and I couldn't think of a better chart than this. Right from schooling to your professional career, this is how your specialization chart would look like. Right from nursery to your 10th standard, everyone is learning same thing, right? सबको ये बताया जा रहा है कि A के बाद B होगा, B के बाद C होगा, and everyone is okay with it. 10th के बाद हमको बोला जाता है कि साइंस और कॉमर्स में you can choose which is where we get into specialization mode, and उसके बाद आप कुछ MBA करते हैं, कुछ BBA करते हैं, कुछ CA करते हैं, and there are various means and methods of doing your going about your career. But at the start of your professional career, you need to realize that अगर आपके पास कोई एक extra trait नहीं है, which will be a spike on your resume, you wouldn't be able to make a successful career. अगर आपके पास कुछ extra that spike is not there, how will you really tell the corporate or your client how you can make a difference in a pool of various candidates? So need of specialization starts right when you are 2021 getting into that mode of पैसा, जैसे चैन भैया बोल रहे थे, पैसा और पैशन में, right there you need to understand कि आपको किसी एक एरिया में स्पेशलाइज होना है, and once you are specialized, then whenever you are there in your corporate life, कुछ ना कुछ career opportunities आपको मिलती जाएंगे, and as you move up the career ladder, you need to be generalized. So a CEO or a CEO would require a lot of domain expertise, but अगर कोई fresher है तो उसको एक एरिया में ही expertise चाहिए. So on a plot of specialization to time, understand that right when you're 2021, you need to specialize in one particular thing. And this is where I would really like to differ from Chain Bhaiya and Gaurav sir, that, and everyone here would like to tell you that follow your passion, which is absolutely not what I agree. Do not follow your passion. Your passion is almost dynamic. It's misleading, and it's very, very counterproductive. I will tell you how. For once, see, Chain Bhaiya, Gaurav sir ने पूरा career path देख लिया, and now they know कि उनको क्या पसंद है. Right when you are starting, you don't know which all areas are possible, which all areas you are capable of, and which all areas are possibly the go-to areas in the future. So in the start of your career, do not follow your passion. This guy was really passionate about ice creams, and at the end of 5th year he realized कि इतना ice cream खागा कि this was not really my passion. So it's dynamic. आपको पता ही नहीं चलेगा आपका passion कभी हो सकता है investment banker बनना है, बाद में पता चलेगा portfolio manager बनना है, बाद में पता चलेगा corporate banker बनना है. You never know. Second, it's misleadingly attractive. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई राइटर ही नहीं है, कोई सीए राइटर क्यों नहीं है? I write very good, let's become a blogger. But have you realized कि why CAs are not that often a writer? तो आपको pros and cons सबके निकालने चाहिए. बहुत misleadingly attractive हो सकता है आपका passion. And the third point is it's hard to prioritize. You want to be an investment banker, you want to be a writer, and you also want to be a cyclist. Which one to choose? How will you really choose your passion? So passion choose करने से पहले you need to diversify, which is the topic of today also. Diversify और specialization कैसे hand in hand जाते हैं? At the start of your career, you need to understand कि what all areas are there to foray into. Understand the pros and cons of everyone, and invert, always invert. This is a mental model that even Charlie Munger follows. Inversion or the law of negation. आप सारे ट्रेड निकाल लो, सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाल लो, और उसमें आप ये देख लो कि आपको क्या क्या नहीं आता है या आपको क्या क्या नहीं करना. Just strike them out and you will have 2-3 areas that you would like to foray into. So that is how you can start your career, by understanding every pros and cons of every possible path, and उसमें फिर law of negation निकाल के आपको पता चल जाएगा ये मैं कर सकता हूँ, right? So do not follow your passion is my go-to mantra. I really tell to all my candidates that understand and diversify as much as possible early in your career,
And then as you understand all the career paths, you will be able to follow law of negation, and बाद में आप choose कर सकते हो कि which area is the go to for you. And this is a short guide to career building that I often speak about and tell all my candidates कि always have a role model and a mentor. आपको पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है. अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपको entrepreneur बनना है, या फिर आपको you want to become a, let's say, a manager at a bank, आपको role model देख लेना चाहिए. Does Elon Musk आपको attractive लगता है, or you find attractive, let's say, Bill Gates, or you find attractive चार्ली मुंगर. अब चार्ली मुंगर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो you will understand कि आपको investment ज्यादा पसंद है. So follow a mentor, follow a role model. आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको पसंद आ रहा है, and try to analyze their journey, what all paths they took, and वो सारे पाथ्स में से आप फिर वापस लॉ ऑफ नेगेशन निकालो कि कौन कौन से पाथ्स आपके लिए बने हैं, कौन कौन से पाथ्स आप फॉलो कर सकते हो. Evaluate the future prospect of each career path. This is where even diversification comes into play. Humayun, आपको सबको पता होगा, Humayun was Akbar's father. He established Mughal empire in India. He died a very petty death. He was walking and उनका जो पैर है वो रोब में फंस गया, and he hit his temple on a stone and he died at the age of 49. It tells you one story that is pretty clear. If you don't understand, or if you, no matter how big you are, अगर if आपको ये नहीं पता है कि what is your imminent death, आप तुरंत ही मर जाओगे. Nokia being an example, BlackBerry being an example, I can quote 10 more examples. Understand कि क्या मरने वाला है, क्या चीज नहीं चलने वाली है. So while I am not speaking that non-traditional practice won't be flourishing in the future, there are few things that won't be there in the future. So if you understand what is the imminent death, you will be able to avoid it. So आप हर एक scenario का, हर एक path का pros and cons निकालो, and take the worst case scenarios, avoid it, and take a path that is for you. So that is how you can build your career. That is how I have made my career, by understanding corporate banking, investment banking, portfolio management in my early career. Then I got to realize कि सबसे बड़ा problem क्या है. I understood कि मेरे throughout 5-6 years of career, what is the biggest problem that I have faced, and I tried to solve it via valuation. So I hope and believe that everyone would be able to follow that path. If I tell you about the upcoming opportunities, there are various opportunities lying in startup consulting also. Legal startups बहुत सारे आ गए हैं. Tax to Win, C. Abhishek from Jodhpur, he runs it. He is the Tax to Win is the second largest tax player in India after ClearTax. तो ऐसा नहीं कि legal advices आप 1-to-1 ही दोगे, आप एक portal बना सकते हो, and you can do wonders as that of Abhishek. Similarly, fintech platforms are up and coming, and who better than CAs to guide on finance? Similarly, data analytics, forensic audit, there are various opportunities available. We have amongst us CA Abhishek Mittal, who has been doing tremendously well in data analytics. He understands कि future में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, and he tries to foray into that region. So I urge everyone to understand कि future is the key. Understand कि future में क्या होने वाला है and how can you really contribute, and only then you will be able to make your career successful. Thanks Gautam. Thanks everyone for inviting me. Thank you, Prateek. Thank you very much. So this was good to hear from you, the another side of the passion and all sort of things. So good to hear from that. So now I would request Abhishek Mittal to have a few words, because in all discussions you are also having some diversification and specialization things to tell upon. So Abhishek, can you have a few words from your side also? Because these sessions, I would say or add thing that we have a common forum where we come up with lot of discussion that what we can do for our CA fraternity, or what other discussions we can point out which will be helpful for a CA fraternity. And Abhishek help us to put these things in a place, and he takes that initiative, and that's why these regular sessions are been happening.
So I thank Abhishek on the behalf of CA fraternity that he thinks upon that and gives us this platform to discuss upon, have another vision as said by Mr. Chayan Agarwal or Gaurav sir or Ravi sir कि मतलब क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं. So राहुल, अभिषेक, छोटा सा एक आप भी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इस पे, तो that would be helpful for all of us. I think I can sum up the session in very short and sweet that as a CA we are very much aware about the balance sheets. हमें जितना अच्छा financial analysis आता है उतना किसी भी professional brother को नहीं आता है. Now as a CA fraternity we need to be united and committed with each other, and we need to think that yes, as a CA हमने CA पढ़ाई कर ली है, that is enough for us. Now we need to move ahead बोल्डली एंड हमारा कम्युनिकेशन हमको अपने सोसाइटी के अंदर और बेटर करना है और प्रैक्टिकल करना है. हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. ऑफ कोर्स आईसीआई एज अ प्रोफेशन इज गोइंग अहेड, मार्चिंग अहेड. हमें खुद सबको मिलके, जैसे इधर आज 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं मानता हूं कि अगर 60 पीपल इफ एंटर इनटू डिफरेंट वेंचर्स, ईच टेकिंग अ डिफरेंट साइड, और एक एक प्रैक्टिस एरिया स्टार्ट कर लेवे और उस पे रोज 3 घंटा देवे, तो 60 बड़े हाउसेस सूरत के अंदर खुल सकते हैं. 60 बड़ी बिल्डिंग्स बन सकती हैं 100-100 लोगों की. कल मैं वलसाड़ जाके आया था, वहां पे मैंने 60 जनों की टीम देखी जो कि आउटसोर्सिंग में काम कर रही है, और मैं 2015 में भी गया था, और सूरत में आज आउटसोर्सिंग का ट्रेंड शुरू हुआ है. तो जैसा गौरव सर, रवि सर बताते हैं कि वर्चुअली एवरीथिंग इज पॉसिबल आफ्टर कोविड. हम कहीं से कुछ भी कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज हमें अपने माइंडसेट में ये रखना है कि एज अ सीए, हमने सीए की पढ़ाई कर ली मतलब हम बैलेंस शीट समझते हैं. हमें बैलेंस शीट समझ में आती है, हमें बिजनेस समझ में आता है, और बिजनेस अगर किसी को समझ में आता है तो उसके पास सब कुछ है. हमें पीएनएल का पार्ट नहीं बनना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनना है. हमें ऑडिट फीस से ज्यादा हमें ट्रेडिंग के अकाउंट में आना है, ताकि हम और बेटर कर सकें अपने प्रोफेशन के लिए. थैंक यू गौतम. थैंक यू वेरी मच. नाउ एक छोटा सा सारा चीजें समअप हो गई है और सब स्पीकर्स ने अपने थॉट प्रोसेस पुट डाउन किए हैं. सो जो भी अपने पार्टिसिपेंट्स है, इफ दे हैव एनीथिंग टू डिस्कस अपॉन, सो प्लीज थ्रो अवे योर क्वेश्चंस, और सब मेंटर्स अवेलेबल हैं, सो दे विल आंसर यू एंड विल गाइड यू. So whether it would be चयन सर के लिए हो, चाहे प्रतीक के लिए हो, चाहे अभिषेक के लिए हो, चाहे रवि सर के लिए, चाहे गौरव सर के लिए. So is there any questions? Please throw up. Otherwise, we'll close this session. That's all. Very good morning, sir. Good morning. Good morning. बोलिए साक्षी. सर एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन है. हाँ जी. पता नहीं चल रहा है, मैं अभी आर्टिकल चिप कर रही हूँ. पता नहीं चल रहा कि कौन से फील्ड में जाऊं. बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है पर इंटरेस्ट ही फाइंड नहीं हो रहा है सर कुछ. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट अभिषेक, आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, और दूसरे मेंटर्स प्लीज गाइड ऑन दिस. आई वुड रिक्वेस्ट. Abhishek, you are on mute. Sakshi, your question. Abhishek, आप mute. हाँ. Yes. Your question is very much relevant at your age, and now I would request कि भाई आप अभी जब आर्टिकल शिप कर रही हैं, कोई भी 2-3 एरियाज जो आपको समझ में आते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट साइड है, चाहे कंप्लायंस साइड है, चाहे ऑडिटिंग साइड है, कोई भी साइड आप दोनों तीनों एरियाज को एक्सप्लोर करें. अभी आपके पास टाइम भी अवेलेबल है. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डिसाइड द करियर एट द वेरी अर्ली फेज ऑफ लाइफ. अभी सीए कंप्लीट करना भी बाकी है, कुछ एरिया ऑफ एक्सपीरियंस भी लेना बाकी है आपके. सो आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस और लिटिल बिट ऑफ थॉट प्रोसेस इज फर्दर रिक्वायर्ड. ये वरी मत करिए कि आज ही डिसाइड करना है. अभी बहुत टाइम है आपके पास कम से कम 1.5 से 2 साल और पेंडिंग है, जब तक आप डिसाइड कर सकते हैं.
तब तक आप एक्सप्लोर करते रहें, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट ट्रेनिंग्स, एजुकेशन लेते रहें, आपको अपना इंटरेस्ट अपने आप 1.5-2 साल में पता चल जाएगा। आप अवेयर हैं अपने इस चीज के लिए कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, आई थिंक दिस इज द गुड पॉइंट, यू शुड नॉट बी वरीड फर्दर। एनीथिंग एल्स Jain sir, would you like to add? हाँ Jain sir, वेरी राइटली सेड बाय अभिषेक, सही है। और साक्षी मैं यही कहूंगा कि ये प्रतीक ने एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी पुट किया ही है, पैशन क्या है फाइंड करने के लिए। एज पर हिम ही सेज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट या वी कैन नॉट फाइंड पैशन, टाइम के साथ होगा। अब मैं इसमें यही कहूंगा कि आप अभी आर्टिकलशिप कर रहे हो ना, तो आर्टिकलशिप में आपको बहुत सारे काम करने को मिलेंगे। आप सभी काम कर रहे हो तो आपको वो काम देखना है। मेरे हिसाब से पैशन का मतलब वो है जो आप इनडेफिनिट पीरियड कर सकते हो, मतलब आप टाइम देखे बिना कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर कोई चीज बिना टाइम देखे करने का मजा आ रहा है तो दैट इज माय पैशन। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आप किसमें बोर हो रहे हो। मैं आर्टिकलशिप में बहुत बोर हो रहा था ऑडिट करने में, रिटर्न बनाने में, तो मैं क्लियर था टैक्स में हाईएस्ट है, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी भाई। तो वो पैशन आपको वहां से कहीं ना कहीं एक हिंट मिलता है ना। अभिषेक ने भी राइटली बोला, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको अभी पता चले, आप सोच रहे हो वही बहुत अच्छी बात है। आप सोचना आपने शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग तो सोचते ही नहीं है, सीए कंप्लीट होने के बाद सोच रहे हो। सो दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर यू। आवाज तो धीमो रही केवढं बसले हे आपको। ओके, थैंक यू सर। होप साक्षी आपको एक प्रॉपर आंसर मिला, एंड गुड थिंग जो सबने बोला मेंटर्स ने कि आप सोच रहे हैं, दैट इज गुड, और इनफ ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। सो ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से सेग्रीगेट करके उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। एनी अदर क्वेश्चंस फॉर जयन, प्रतीक, रवि सर, गौरव सर? Okay, so I think the session was great. Thank you all the speakers for sparing the time, and also to the participants जिन्होंने भी टाइम स्पेयर किया, because without participants मतलब जो speakers और हमारे लिए वो चीज़ इतनी fruitful नहीं हो पाती है, वैसा है। So thank you very much to all, और we'll close this session, and thank you to Ketul from Accounting Baba, which is helping on the technical part कि ये सारे events हमारे properly हो पाए। And thank you all everyone for participating, and to speakers also. Thank you. We'll close this session. Yeah. Thank you, Sheikh and Ketul, for having a super Sunday for every one of us. I think it was really a very nice session. Thank you so much. Thank you, Gautam. Thank you, Jain. Thank you. Thank you, Gautam. Thank you, Okay, Abhishek. see you everyone. Bye-bye. Thanks, Jain and Nice to meet you. Ravi sir for being the co-speakers. Lovely introducing to you. And main thing is मैं यही लास्ट में बोलना चाहूंगा कि भाई हम सीए में सारा पावर है। The only day is कि हम रियलाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम रियलाइज कर चुके हैं थम्स अप के we will build business houses, हम will make the service sector like the business sector. That's what the dream of ICI should be. Thank you. Yes, true. Very nice. Okay, Ravi sir. Bye-bye. Bye everyone. Bye.